हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 22 ज्योग्राफी का, यानी भूगोल का चैप्टर जो 22 है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आज हम करेंगे लैंड यूज़ एंड एग्रीकल्चर, यानी भूमि का उपयोग और कृषि। ये चैप्टर जो होगा कई मानने में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो एनआईएस में पढ़ते हों, चाहे सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, इवन कि जो बच्चे कॉम्पिटिशन तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सिलेबस बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन ये सब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी हैव अ डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट chapter here, land use and agriculture. There is a most important chapter here. An important point arrive here, general land use. There is generally land use, the most important point here. A land is the most vital source of country. There is an important point here. The land is the most vital resource of country. It is a fixed assessed and cannot be expanded to meet the needs of an increasing population. Therefore, it must be used carefully and in the best possible manner. The total geographically area of India is 32.88 lakh square kilometer. That is important. The major land use in India are the first year set sovereign area, means NSA. Net sovereign area is NSA is important. The total land area on which the crop are growing in a region is called net sovereign area. The net sovereign area and the area sovereign more than one together are called gross cultivated area. In India, about 47% of total reportings area under to the net sovereign area. There is important here. The states, namely Punjab, Haryana, West Bengal, Uttar Pradesh, have to be high proportionally is a share of NSA than the national average. Against this is the share of the NSA is the less than one half of the national average in the state of Himachal Pradesh and Uttarakhand, Meghalaya, Manipur, Nagaland and Mizoram, Sikkim and Arunachal Pradesh. That is the most important for the NSA's part here. And all this state is a suffered is from to physical disabilities as such as undiatic terrain of due to the hill topographs and limited there is the ability of plant land and fertile soil and important for the cultivation here. This is evidently clear from state which are distribution of proportionally a share of NSA that a physiographic factor play an important role in the ability of net is a cropped area in the region. There is a most important point here. The next here, forest. The forest here, the area under to forest cover in about 68 million hectare is an important point here. The area under the forest cover in about 68 millions hectare are 22% of the total area in the country, but 30% is required. This area has increasing from the 40 million hectare in 1951 to be 68 the million hectare in the 2000. For the ecological balance, by forest cover should be at least 33% of the total geographical area of the country. There is a most important point here. 33% of total geographic area of forest is covered in
important. There is a balance of ecological, but here are 22% only here area of country. There is a very dangerous situation is present here. The state of Arunachal Pradesh, Mizoram, Jammu and Kashmir and Tripura has a relative is a large proportion of the area under forest cover. There is a most important here. Only for the Arunachal Pradesh, Mizoram and Jammu Kashmir and Tripura there is a most important here. The next year, land not available for a cultivation. There is a most important point here, land not available for a cultivation. The land under to the settlement is a road, mines and the quarries along with the barren land are included in this category. The sandy wasteland of Rajasthan, Mars is land of the Kuch Gujarat. The Kuch Gujarat as a rugged and the eroded is area of northeast and the northern mountain are few example of the barren lands. About 33% of the total reported area and the recorded under this category. The Nagaland, Manipur and the Assam registered as a very high percentage of area not available for a cultivation. There is an important here. And the next year, flow of lands, the important point here, flow of lands. When the land are left unused to be regained, there is a loss of fertility in their natural way is called to the flow of the land. On the basis of the unusability is criteria is flow, the land can be divided into two groups, a current and the old. Current follow is their land is which is a no crop is arise during this current year. The old fallow is a land remain unused for a period of 1 or more year. But not exceeding is a 5 year. This is due to be low investment capacity of numerous small and medicinal is a farmer in the advanced technology. Lack of awareness, loss of fertility of the soil, and the inadequacy of rainfall, lacking in the irrigational and facility, etc. The follow land is occupy about a 7.5% of the total reported area. The state of Mizoram, Tamil Nadu, Meghalaya, Bihar, Andhra Pradesh and Rajasthan have a high percentage of area under follow to the land. It is to be noted here that all fallows land may be not be economically important, but from ecologically is a point of view, follow the land is important category of land here. And next year, cultivable wastes. The cultivable wastage is important here. It is the land is a which is a crop where is arise for a some period of time, but has a not been to be cultivated from the last 5 years due to the content of deficiency such as alkalinity and salinity in the soil. Such a cultivable waste are locally known as a rebur, usar as a kola in the some part of northern India. Meghalaya, Himachal Pradesh and Rajasthan have a very high share of cultivable wasteland in the total land use in the respectives of states. The next year, permanent posture and grazing land there is important here. Not with an extending their highest like of stock. The livestock is a population in the world. India has only less than 4% of country under to pasture and grazing land. And the state of the Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh and is a Maharashtra, Gujarat and Rajasthan have a high above to 5% of area under this category. The area under difference of land use are given here below. The table is an important table land utilization in India here. Here come the table, the land utilized in India, there is land use and area in the lakhs hectare in a percentage. Area under non-agriculture uses is a 212 and is a percentage 6.95 only. The barren and uncultivated land here is a 197 but its a percentage is a 6.46. A net area shown is a 1442. There is a maximum is the net area shown here is a 46.64 percentage here. A miscellaneous is a tree crops and groves area 37 only the 1.21 but is missing here forest land. The forest land is the most important here of 6079. Their percentage of 22.27 percentage in use here. The next year, cultivable wasteland, there is a 150. There is a percentage here, 9 is a 4.92% only, and current flow here is a
138 is the only percentage use of 4.53 only, and the all fellow is here 96 as here, but is a percentage here 3.15 only, and permanent pasture and grazing land here 118 to 3.87 there is only here, and total is a 3049. There is the total growth area of which is the land utilized data is available. That is important, and the 100% is important. यहाँ पर जो हमारे समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर आया है भूमि उपयोग और कृषि। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भूमि उपयोग और कृषि के बारे में जो हमें जानने का यहाँ मौका मिला है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसी अंतर्गत जो पहला पॉइंट आया है भूमि के सामान्य उपयोग। देखिए भूमि का अगर देखें तो सामान्य उपयोग क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भूमि के सामान्य उपयोग क्या है। कहते हैं भूमि किसी भी देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि भूमि किसी भी देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन में से एक माना जा सकता है। भूमि संसाधन स्थायी एवं सीमित होते हैं और बढ़ती आबादी के अनुरूप इस संसाधन की वृद्धि नहीं की जा सकती है। अंततः भूमि के उपयोग में सावधानी एवं युक्त संगत कौशल प्रणाली की जरूरत है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर है। कहते हैं ये प्रतिशत बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल फैला हुआ है। और भारत में प्रमुख भूमि उपयोग इस प्रकार है, जो कि हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। पहला तो हमारे समक्ष यही आता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। कहते हैं वह संपूर्ण भूमि क्षेत्र जिन पर जो है फसल उगाए जाते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि वह संपूर्ण भूमि क्षेत्र जिन पर फसल उगाए जाते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र था ऐसे क्षेत्र जिनमें फसल एक से अधिक बार उगाए जाते हैं सकल जोत भूमि कहलाते हैं। तो आप दोनों का मतलब समझ गए होंगे कि जो यहाँ पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है और जो है सकल जोत भूमि क्या होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है क्वेश्चन था। कहते हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र का अनुपातिक प्रतिशत जो है राष्ट्रीय अनुपात से काफ़ी ऊंचा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है अनुपातिक प्रतिशत जो है राष्ट्रीय अनुपात से काफ़ी अधिक है, और ठीक इस अनुपात का राष्ट्रीय औसत अनुपात से काफ़ी ऊंचा भी है। और इसके विपरीत जो है हिमाचल प्रदेश जो है उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अनुपातिक प्रतिशत जो है अनुपात के आधे से भी कम है। तो आप समझ सकते हो कि जो ऊपर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश की बात बताई गई है तो वहाँ पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है काफ़ी अधिक है। लेकिन अगर हम मेन चीज़ देखें यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र की जो अनुपात है बहुत ही कम है। और ये सभी राज्य जो है भौतिक विषमताएं जैसे पहाड़ी असलकृतियों के कारण ऊंची नीची भूमि भी है। कहते हैं इन नीची भूमि और सपाट भूमि और जो उर्वरक युक्त जो मिट्टी की सीमितता से पीड़ित भी हैं, जो उपज के लिए अनुपयोगी हैं। इससे स्पष्ट है कि भू आकृति कारकों का जो है राज्यवार शुद्ध बोया गया क्षेत्र तथा शुद्ध उपज क्षेत्र के बीच के अनुपातिक वितरण में विभिन्नता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके पश्चात आता है वन। देखिए वन जो है वन अनाच्छादित क्षेत्र भारत में करीब जो है 680 लाख हेक्टेयर या देश के कुल क्षेत्रफल का देखा जाए तो 22% क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और यह क्षेत्र जो है 1951 में 400 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2000 में जो है 680 लाख हेक्टेयर हो गया। तो देखा जाए तो ये बढ़ता ही चला गया। इसका अर्थ है कि वन को जो है काफ़ी अमाउंट में जो है नष्ट किया गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वन का जो है विनाश इन्हीं कारणों से सुनिश्चित हुई है। पारिस्थितिक संतुलन के लिए जो है वांछित क्षेत्र का कम से कम देश कुल क्षेत्रफल का 33% भाग पर होना आवश्यक है। लेकिन देखिए यहाँ पर सिर्फ 22% ही रह गया। तो इसका मतलब है कि वनों का जो है बहुत ही विनाश किया गया है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है और बहुत ही प्राकृतिक जो है अनुसरण की आवश्यकता है। कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर तथा त्रिपुरा राज्य में वन क्षेत्र का अनुपात अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है काफ़ी बरसाती वाले क्षेत्र आते हैं और इन क्षेत्रों में जो है कृषि करना संभव नहीं है। इसलिए वनों का जो है यहाँ पर काफ़ी अनुपात में जो है वृद्धि हुई है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि किस प्रकार है। इस समूह के अंतर्गत ऐसी भूमि जहाँ बस्तियाँ, सड़क के खदानें और खुली खदानों तथा बंजर पथरीली भूमि शामिल होते हैं कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि कहलाती हैं, क्योंकि ये भूमि में जो है सड़कें, खदानें, खुली जो है खदानें और बंजर पथरीली भाग होगी तो इसमें कृषि करना संभव नहीं होता है।
इसी प्रकार राजस्थान रेतीली पड़ती भूमि, कच्छ गुजरात की दलदली भूमि और उत्तर पूर्वी एवं उत्तरी पर्वतीय भाग की ऊबड़ खाबड़ पथरीली तथा कटाव युक्त भूमि जो है बंजर भूमि के कुछ उदाहरण हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो है ऐसी भूमि पाई जाती है और उत्तरी पर्वतीय भाग में ऊबड़ खाबड़ और पथरीली कटाव और युक्त बंजर भूमि की बहुत ही उदाहरण आप देख सकते हो। कहते हैं देश के क्षेत्रफल का करीब जो है 13% भूभाग इसके अंतर्गत आता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देश के क्षेत्रफल का करीब 13% भूभाग जो है इसके अंतर्गत आता है। कहते हैं नागालैंड, मणिपुर तथा असम राज्यों में इस प्रकार की भूमि का प्रतिशत अन्य राज्यों से अधिक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं इन क्षेत्रों में जो है अधिक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान माना जाता है और ये ज़रूरी भी है। उसके पश्चात आता है परती भूमि। देखिए परती भूमि भी कई मानने में महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं जब भूमि को प्राकृतिक तरीके से पुण्य उर्वर शक्ति प्राप्त करने हेतु खाली छोड़ दिया जाता है तो उसे परती भूमि कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब भूमि के प्राकृतिक तरीकों से पुण्य उर्वर शक्ति प्राप्त करने हेतु खाली छोड़ दिया जाता है और उसमें कुछ भी नहीं की जाती है तो ये जो है परती भूमि कहलाती है। कहते हैं पुण्य उपयोगी के आधार पर इस प्रकार की भूमि के दो वर्गों में चालू तथा परती में बांटा जा सकता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी पुण्य उपयोगिता के आधार पर इस प्रकार की भूमि को दो वर्गों में बांटा जाने का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष में जिस भूमि पर कोई फसल न उगाए जाएं उसे चालू परती भूमि कहते हैं। यानी चालू वर्ष में जिस भूमि पर कोई फसल न उगाया जाए उसे चालू परती भूमि कहते हैं। और ऐसी परती भूमि जिस पर 1 या 2-3 वर्ष तक जो है परंतु 5 वर्ष से अधिक नहीं कोई फसल नहीं उगाई जाती रही हो उसे पुरानी परती भूमि कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं यह अनेकों छोटे और सीमित काश्तकारों की जो है शून्य निवेश क्षमता होती है। कहते हैं अविकसित तकनीकी और जागरूकता की कमी और भूमि के जो है उपजाऊपन में कमी और वर्षा की कमी, सिंचाई व्यवस्था का न होना इत्यादि कारण भी होते हैं इसके कारण। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कोई भी अगर देखा जाए तो इसमें न्यूनतम निवेश क्षमता, अविकसित जो है तकनीक, जागरूकता की कमी, भूमि के उपजाऊपन की कमी, वर्षा की कमी, सिंचाई व्यवस्था का न होना, ये सब कारण इसके बनते हैं। कहते हैं कृषि योग्य भूमि का जो है 7.5% परती भूमि के रूप में पाया जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें मिजोरम, तमिलनाडु, मेघालय, बिहार, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान जैसे राज्यों में परती भूमि का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है। और यह ध्यान देने की बात है कि पुरानी परती भूमि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पुरानी परती भूमि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन पारिस्थितिक दृष्टि से ये भूमि का महत्वपूर्ण बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहता है। उसके पश्चात आता है कृषि योग्य परती व्यर्थ भूमि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कृषि योग्य जो है परंतु व्यर्थ भूमि, इस प्रकार की भूमि में पहले फसल उगाई जाती रही है परंतु पिछले 5 वर्षों से भूमि के जो है समस्त ग्रस्त होने जैसे मृदा में जो क्षारीय तत्व तथा लवणों की मात्रा में वृद्धि से फसलें जो है नहीं उगाई जाती है। और इस प्रकार की व्यर्थ भूमि को उत्तरी भारत के कुछ भागों में रेय, भूर और उसर और कोला के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं मेघालय, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों में इस प्रकार की भूमि का प्रतिशत कुल कृषि योग्य भूमि से सबसे अधिक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि का भी यहाँ पर प्रावधान है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अस्थायी गोचर एवं चरगाह की भूमि। कहते हैं भारत में पशुधन की संख्या विश्व में सबसे अधिक है जबकि कुल क्षेत्रफल के मात्र 4% भाग ही गोचर एवं चरगाह के रूप में उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान राज्य में ऐसी ही गोचर एवं चरगाह भूमि की प्रतिशत 5 से अधिक है। विभिन्न भूमि उपयोग के क्षेत्र के नीचे दिए गए कुछ सारणी बताई गई है जो कि काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर दिखाया गया है कि भारत में भू उपयोगी यानी जो है भूमि उपयोगिता, क्षेत्रफल और प्रतिशत। देखिए अकृषि भूमि का क्षेत्रफल जो होता है कहा जाए तो क्षेत्रफल 212 होता है। इसकी प्रतिशत जो होती है 6.95% होती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है बंजर और कृषि अयोग्य भूमि जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 197 है और इसकी प्रतिशत देखें तो 6.46% इसका मान रखा है। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है 1442 है और इसकी प्रतिशत की बात करें तो 40.64% है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात है वनाच्छित भूमि यानी जिसका जो है यहाँ पर क्षेत्रफल 679 है और इसका 22.27% इसका जो है आंकी गई है।
विभिन्न पेड़ पौधे और फसल एवं उपवन जो है 37 वो है क्षेत्रफल है, और इसकी देखा जाए तो प्रतिशत जो है 1.21% है। कृषि योग्य प्रति भूमि जो है 150 है क्षेत्रफल, और इसकी जो है प्रतिशत 4.92% है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर चालू प्रति भूमि की बात करें तो 138 है, जिसकी जो है प्रतिशत 4.53% है। पुरानी प्रति भूमि की जो प्रतिशत देखा जाए तो 96 क्षेत्रफल है, और इसका 3.15% है। अस्थायी गोचर एवं चरगाह भूमि जिसका जो संख्या है 118 है, और इसका जो है प्रतिशत जो है 3.87% है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है भूमि की जो है वितरण की गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। और ये पॉइंट भी थी जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आगे का पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसी तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए। अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आप त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प कर सकते हो। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, लिंक को यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है, क्योंकि जो भी बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे वो अगर उन बच्चों को इस वीडियो की आवश्यकता होगी तो वो ज़रूर देखेंगे, और जिनको नहीं देखना है वो इग्नोर करेंगे। लेकिन आपने अपना कार्य किया, आपने त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प किया, इसलिए सदैव त्रिपाण स्टडी सेंटर आपका आभारी रहेगा। ठीक है, अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप नहीं कीजिएगा कोई वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो वीडियो आपको जो है यूट्यूब रिसर्च से नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि जब भी यूट्यूब पर रिसर्च कीजिएगा दूर दूर तक त्रिपाण स्टडी सेंटर शायद नज़र भी ना आए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको जो है यूट्यूब पे इसका लिंक जो है मिल जाएगा, जहाँ पर सभी वीडियो उपलब्ध है। साथ में आपके लिए त्रिपाण सेंटर ने जो है प्लेलिस्ट का भी प्रावधान किया है, जिसमें आपको सभी वीडियो जो है बहुत ही सुचारू रूप से प्राप्त हो जाएगा। चाहे आप सिलेबस के अंतर्गत देखें, चाहे आप जो है क्लास के अंतर्गत देखें, यहाँ पर जो होगा 8th क्लास से लेके MA तक बच्चों के लिए हर एक वीडियो जो है सुचारू रूप से उपलब्ध होगा।